नमस्कार, मैं अशोक व्यास कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हुए मुझे प्रसन्नता है इस कार्यक्रम में आप मिलने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने न केवल अपने मरीज़ों का, उनके हृदय का ख्याल रखा, बल्कि जो अवेयरनेस होती है आवश्यक अच्छी तरह से स्वस्थ जीवन को जीने के लिए, उसको औरों तक पहुंचाने के लिए आपने लेक्चर्स भी दिए हैं, आपने पुस्तकें भी लिखी हैं, और अब जब आज आप पधारे हैं तो मैं उनको बधाई दे रहा हूं क्योंकि हिंदी अनुवाद जो उनकी पुस्तक द ह्यूमन एलिमेंट है वो आ गया है। तो डॉक्टर शरद चंद्र जेटली जी, आपका तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत है। हमने पहले इस द ह्यूमन एलिमेंट के बारे में चर्चा की, थोड़ा सा फिर से हमारे दर्शकों को बताएं ये है क्या। First of all, I'd like to thank you, Ashok ji, for inviting me back. And I feel like I'm back at home right now, again with you, Ashok ji. Pishli baar, we talked about the human element, and the human element was my earlier book that I had published in 21. And subsequently, मेरे हृदय से ये निकल रहा था कि शायद भारत में जो है कुछ लोग जो हैं हिंदी का प्रयोग, हिंदी का प्रचार आज भी कर रहे हैं, और हिंदी करते रहेंगे, वो राष्ट्रभाषा है, वो तो करेंगे। जी हाँ। और ये भाषा जो ऐसी है, अगर आप प्रयोग ना करें तो खुद ही अपने आप वो नाश हो जाता है उसका। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं हिंदी का अनुवाद अपने आप एक प्रयत्न करता हूँ, एक प्रयास लिया मैंने यहाँ से, और मैंने कहा यहाँ से कोशिश करके जो है देखता हूँ, लिखता हूँ। तो मुझे एक बहुत अच्छे पब्लिशर वहाँ मिल गए भारत में, और उन्हीं से मैंने ये पब्लिश करवाई है, मानव तत्व की खोज में। So exactly, it's actually a ditto translation of Finding the Human Element, which I published in 21. तो ऐसा करते हैं, थोड़ा ह्यूमन एलिमेंट के बारे में फिर से चर्चा करते हैं। आप क्या अर्थ लेते हैं ह्यूमन एलिमेंट से? ह्यूमन एलिमेंट, देखिए, आज आप और हम जैसे ही बैठे हैं और बात कर रहे हैं, ये दिस इज अ ह्यूमन एलिमेंट. इट्स फ्लोइंग, द वाइब्स आर फ्लोइंग बिटवीन अस. And I think because being a physician, I personally feel that the human element is so important between a doctor-patient, time-honored relationship that there is nothing more sacred than that. Because who else will you go to share your own personal grief, personal pain, personal sufferings? Joys also. Only to a physician. Mm-hmm. You can't go to an accountant, you can't go to a lawyer, you cannot go to anybody else. So, and you have such a great trustworthy physician, a general practitioner or maybe a specialist who is looking after your personal health. So you feel so, sacredly important that I can go and share. Yeah. Sometimes people don't even share with their spouses. Allow me to express my difference of opinion. Or maybe you just wanted to make a point, so you said, so the way you expressed it, you said you cannot go to an accountant, and we are talking to him. So there are many accountants who have abundance of human element for many people. No question. And so whatever be the service that you are offering, whichever be your profession, human element, I believe, is the key in giving the kind of satisfaction, whether it is a financial service or whatever. Right. So no question. So now allow me to add another question. Mm-hmm. जो टाइटल आपकी किताब का है मानव तत्व की खोज में, तो खोज में की आवश्यकता क्या हुई? हाँ, तो वो होता ये है कि because you have to explore within yourself that human element. It's a great question because we all were born with that human element within us. It's not that something out of the blue that I've really created something for the people. We have it within ourselves. We just need to re-explore and actually re-implement within ourselves to have that. Whether you're with the family, whether you're with your friends, whether you are with, like you said, you could be in a publishing business, in your journalism business, at the studios. The human element between you and your colleagues and the people around you will automatically make an impact where actually the employer and the employees will be functioning, and actually their function will be far more productive than actually when the human element is lacking. Now, especially in medicine, it is more important. That's why I meant to say that. So, that's why it was extremely important, because I'm coming from that field. But you're right, you need it in everywhere, whether it's accountancy or journalism or lawyership, etc. But you're right, without the human element, one cannot function. But what is human element? वो जो आप पूछ रहे हैं. So that is the feeling of compassion, the feeling of giving, the feeling of empathy, the sympathy जो एक इंसान के लिए रहती है, वो बहुत ज़रूरी है. अब फ़र्ज़ कीजिए, मान लीजिए मैं अगर आज आपके ऑफिस में लेट पहुंच रहा हूं, तो अगर मैंने आकर जो है सबसे पहले आपसे पहले ये अनुरोध किया कि आपको काफ़ी इंतज़ार करनी पड़ी. That was the human element that you reflected on me directly. सबसे बड़ी चीज़ जो है एक इंसान की जो है अगले की
अगले की जो है भावना समझना और एक दूसरे के साथ उसके साथ मिल के आगे अनुभव करना, वो जो है बहुत बड़ी मानवता होती है। अच्छा, इसमें चूंकि आपकी पुस्तक में भी ये बात आई और मैं एक संदर्भ की तरफ जाता हूँ, जो एक चिकित्सक और मरीज़ के बीच का संबंध है, उसमें जो बात कही जाती है, अगर मरीज़ उसको मानता नहीं है ठीक से, या समझिए कि आपने कहा कि एक दवाई, एक गोली सुबह लेनी है, एक शाम को लेनी है, और वो 2 दिन में ही चारों एक साथ एक समय में ले लेगा, तो उसका असर अलग होगा। तो यहाँ भी ह्यूमन एलिमेंट काम करता है कि कम्युनिकेट किस तरह से किया गया है, और उसको एक ट्रस्ट है कि इन्होंने जो कहा है ये वाला तरीका मुझे अपनाना चाहिए। तो ये तो मान के चलते हैं कि होता ही होता है, ऐसा नहीं होता है क्या? ऐसे ही होता है, क्योंकि होता ये है कि देखिए मैंने इस पुस्तक में भी ये दर्शाया है, और वही ट्रांसलेशन जो है ह्यूमन एलिमेंट का, वही इसमें मैंने हिंदी में दर्शाया है। और वो कहा है कि see, it's easier for the physician to write a prescription, but it's a lot harder to explain what the medicine is all about. How many times to take, when to take, etc. And how long do you want to have it refill? Does it have to be on empty stomach, etc. It takes only 60 seconds, but a physician can go beyond and answer that question for the patient before he or she walks out of the door. Because many times the patients are sitting in the car saying, I forgot to ask this question, एक क्वेश्चन ये रह गया, एक फलाना दिमाग में कुछ रह गया। तो बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर को जो है ये एक्स्ट्रा 9 yards जाके समझाना। मैं तो जैसे प्रिस्क्रिप्शन का आपने बात की, there are procedures that we do. I'm a cardiologist, so obviously when we do procedures, the procedures have to be explained to the nth level. And let the patient and the family together, they should really work together with you. Because ultimately, मान लीजिए मैं patient को तो diet समझा रहा हूँ, but the diet is actually being looked after by somebody else in the house. So what's the point in explaining the diet and the nutrition aspect that the patient has to follow, उसको जो परहेज़ जो करना है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इस वक्त जो हम लोगों को जो है डॉक्टर, पेशेंट एंड फैमिली एक तरीके से एक रीयूनियन करके बात करनी है। और वही चीज़ जो है मेरा ख्याल है समय के अनुसार इस वक्त जो है इतना जो है ऐसी धारा में हम बह निकले हैं, जहाँ पर जो डॉक्टर पेशेंट जो चिकित्सक और मरीज़ की जो रिलेशनशिप है वो कई हद तक थोड़ी कम होती जा रही है। और देखा जाए तो CTs, MRIs और फलाने स्कैन्स में बड़ा समय लग रहा है। हाँ बिल्कुल सही। तो इसके बारे में मैं जानना चाहता था कि जो ये है इमेजिंग हुआ या बाकी के जो टेस्ट लिए जाते हैं, वो एक चिकित्सक को और एज कार्डियोलॉजिस्ट आपको हेल्प करते हैं कि आप पिन पॉइंट कर सकें अपने लिए डायग्नोसिस करने में कि भाई यहाँ ये प्रॉब्लम है वगैरह। तो ओवर अ कोर्स ऑफ आई विल नॉट से कि आपने कितने साल तक प्रैक्टिस की है, बट इट हैज़ बीन अ फ्यू डेकेड्स, तो उसमें आपने देखा टेक्नोलॉजी हैज़ एडवांस अ लॉट। तो एज अ कार्डियोलॉजिस्ट कुछ चीज़ें, एंड देन आई विल कम टू व्हाट यू हैव योरसेल्फ सॉर्ट ऑफ आर इन द प्रोसेस ऑफ ऑपरेटिंग थ्रू अ पेटेंट, बट वहाँ तक जाने से पहले ये जो इमेजिंग है और बाकी जो टेस्ट होते हैं, सो I'll slightly backtrack and say एक जनरल इंप्रेशन रहता है कई बार कि in order to protect their own call I'm going to use skin, तो कई बार ऐसा लगता है कि एक जनरल ट्रेंड हो गया कि कई टेस्ट करा लो, भाई ये भी करवा लो, वो भी करवा लो। एक कॉमन लोगों में ऐसा परसेप्शन बन गया है कि अननेसेसरी टेस्ट भी कराया जाए, बट देयर आर नेसेसरी टेस्ट। आप इस इशू के बारे में क्या सोचते हैं? हाँ देखिए, मेरी यात्रा वैसे तो इतनी लंबी नहीं रही है, हालांकि इसे 45 साल मैंने जो है प्रैक्टिस की है और मैं नहीं आपने ठीक कहा, मगर यात्रा में अनुभव जो है इतना सुंदर है। इट हैज़ बीन सच एक्सिलरेटिंग एंड एक्साइटिंग जर्नी फॉर मी that I personally feel that the landscape of medicine has changed dramatically. And you're right about that, how the cornerstone of the medical care used to be the bedside care. Today, I think increasingly the physicians are spending more time, I personally feel, in the CTs and MRIs rooms and with the record keeping and maybe on the phone or कागजात और कंप्यूटर के कार्यों में उसमें ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं। तो रहा ये कि पेशेंट के पास समय काफ़ी कम हो जाता है बिताने का। तो मैं ये समझता हूँ कि आई थिंक वो समय अब फिर से आना चाहिए, और या है कुछ फिजिशियंस अभी भी वैसी प्रैक्टिस करते हैं जैसे मैं शायद करता रहा, कि एक जो अनिवार्य अपने आप को समझ लें कि डॉक्टर और पेशेंट के साथ जो जितना समय जो बिताना है, क्योंकि आप मरीज़ आपके पास आया है, वो आपको सिखा रहा है, वो आपको दिशा दिखा रहा है और कैसे आगे बढ़ना है, वो बहुत ज़रूरी है। अब कैंसर का पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, रीनल पेशेंट है, वो अपने लक्षण लेके आया है। डायग्नोसिस तो तभी आप करेंगे जब आप जो है वो अच्छे से आपके उसके हिस्ट्री इन फिजिकल और एग्जामिनेशंस जो हैं और इनिशियल टेस्टिंग्स में आपने पूरा गौर किया हो,
तब कहीं जाके आप वो टेस्टिंग्स जो ऑर्डर करेंगे दे विल बी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव अशोक जी। और एक चीज़ जो आपने कही कि सारे टेस्ट ऑर्डर करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर इफ़ यू लिसन टू द पेशेंट सो वेल, इफ़ यू न्यू दैट देयर वाज एन इंडिकेशन टू डू a certain algorithm of testings, then you will only pursue those facts and not elsewhere would you go. So you'll be cost effective yourself. तो मैं इस बात की प्रसन्नता व्यक्त करना चाहूँगा डॉक्टर साहब आपके साथ में कि ये जो पुस्तक आपकी है, हाँ जी, मानव तत्व की खोज में, इसके जो अलग अलग अध्याय हैं उनमें बड़ी सार गर्भित बातें हैं। तो उनमें आपने ये भी कहा है कि बर्नआउट के उपाय क्या हैं या मरीज़ के अपने डॉक्टर को जो, तो आपने सिस्टम की बात करते हुए कहा भाई माल प्रैक्टिस के डर की बात भी आपने करी है, पर जो रोगी शिक्षा के महत्व के बारे में आपने बात कही है वो सीधे सीधे हमारे दर्शकों से अभी भी कहीं ना कहीं उसका एक प्रासंगिकता हो सकती है। तो मतलब हमें वेल एजुकेटेड होना चाहिए अपने बारे में जी। और जो भी देख रेख करने वाला है उसको पता नहीं कि भी इसको क्या क्या है। तो इसमें कई लोग इंटरेस्ट लेते हैं, उनके अंदर नेचुरल इंक्विजिटिवनेस होती है। कई लोग ऐसे होते हैं एम ही ठीक है तो गोली ले ली वगैरह। सो हाउ इम्पोर्टेंट यू फील कि हमें पता होना चाहिए कि वही क्या है? I think you hit it right on the nail, Ashok ji, because you know why? And in fact, that has been my forte in my 45 years of practice, where patient education has been the forte for me, the foremost principle. Because unless and until a patient is educated enough to learn, again, you could be highly literate, you could be a PhD, somebody could be a PhD, but as far as health literacy is concerned, the person may be extremely illiterate. So your job as a physician, my job as a physician is really to make sure that he or she fully understands what the cardiac status of that patient is, what stage of the cancer is the patient in, what test are we ordering and why are we ordering it, and how important it is that he or she has to follow as often as possible, including the pharmacy. So patient education जो है और medical education दोनों साथ साथ होनी चाहिए। होता क्या है कि डॉक्टर्स अक्सर जो है जाके ट्रेनिंग ले लेते हैं, बड़े बड़े CMEs करके आ जाते हैं और पेशेंट एजुकेशन उसी स्तर पर रह जाती है, या मुश्किल से वो गूगल डॉक्टर है एक बगल में तो गूगल डॉक्टर के पास जाके थोड़ा बहुत देख लेते हैं, तो उससे या तो बहक जाते हैं या थोड़ा कुछ पल्ले भी पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस वक्त जो पेशेंट एजुकेशन वो सिर्फ डॉक्टर ही दे सकता है, जो उसके जो स्पेसिफिक यूनिक सेटिंग में है। ऐसे तो आप गूगल पे सब देख लें अपने आप को, बट व्हाट इज हैपनिंग विद मी एग्जैक्टली ओनली यू वुड नो। इफ यू वर माय फिजिशियन यू वुड ओनली नो एग्जैक्टली व्हाट्स गोइंग ऑन विद मी, सो यू विल बी द बेस्ट पर्सन टू रियली गिव मी द नो हाउ अबाउट द इलनेस। सो द पेशेंट एजुकेशन इज एक्सीडिंगली इंपॉर्टेंट। आई थिंक यू हिट इट ऑन द नेल, एंड दैट शुड बी नैरोड। The medical education or patient education जो balance है, that should be actually much closer. You're right. So, I think it is an additional challenge for us meaning whosoever goes through that process, जो कि किसी बात के लिए किसी भी डॉक्टर के पास जाना पड़े, जैसे कि डेमोक्रेसी में होता है कि आपको अपने आप को अवेयर रखना है अपने राइट्स के बारे में, उस तरह से एज ए पेशेंट हो लेट्स से वी शुड ट्रीट आवरसेल्व्स इन अ डेमोक्रेटिक फैशन। तो पता होना चाहिए कि क्या क्या है, तो इसके लिए उसका उपयोग करना छोड़ नहीं सकते हैं, या तो जो देख रेख करने वाला है वो भी ध्यान रखें। बट आई मस्ट ऑल्सो से कि आपकी जो किताब है इसमें जो आपने इसका जो फ्लो है, उसका जो लॉजिकल प्रोग्रेशन है, उसमें आपकी फारसाइटेडनेस या दूरदृष्टिता जिसे कहते हैं वो दिखाई देती है। एक चीज़ जो मेरे मन में आई थी वो भी आपके पुस्तक में, उस पर एक अध्याय आपने लिखा है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या टेलीमेडिसिन है, और एक तरफ हम ह्यूमन एलिमेंट की बात कर रहे होते हैं, तो इन दोनों का तालमेल कैसा है? तालमेल कैसा हुआ? ऐसा है कि there has to be a balance, because ultimately you are progressively increasing your knowledge day by day, and especially more so in my field, cardiology or cancer, in my wife's field, for instance. So I think that day in and day out, all these areas have been really rewritten and re-explored. And the treatments are constantly being evaluated. So hota ye hai ki, and now with the advent of artificial intelligence lately in the last couple of years, in fact I have ek adhyay usme bhi hai artificial intelligence ka chapter maine include kiya hai. And during the specifically during the times of the COVID a couple of years ago, we faced with telemedicine. So telemedicine भी बीच में आ गई, artificial intelligence भी चल रही है, robotic surgery। एक एक पे बात करते हैं। हाँ जी। टेलीमेडिसिन को बहुत इंपॉर्टेंस दी जा रही है इंडिया में भी। हाँ जी। एंड आई थिंक इट इज़ सर्विंग अ पर्पस कि भाई लॉन्ग डिस्टेंस है और डॉक्टर पहुंच नहीं सकता है, और जो बेसिक नॉलेज वाला बंदा वहाँ पर है तो कम्युनिकेट करता है फ़ोन पे वगैरह।
कितना इफेक्टिव आप इसको हाँ, I उसमें pros and cons हैं. I think for the sake of convenience जो आपने कहा, I think it's a lot easier that the physician and the patient, if they cannot get together for whatever reasons, maybe because of the distance, maybe because of the time zone or what have you, or the feasibilities are not permitting that in this weather I can travel all the way down there. वहाँ पे circumstances, यहाँ पर भी circumstances ऐसी हो जाती हैं कई बार. So you're right, that's the pros and cons, but nothing like actually meeting in person. But telemedicine में अब ये तो एक कम से कम एक ये सहारा तो हो गया कि फ़ोन पे बात नहीं हो रही है, आमने सामने आप देख रहे हैं. हालांकि फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं हो पा रहा है, आप ये नहीं देख रहे हैं कि उसके हार्ट में इस वक्त क्या चल रहा है. अच्छा है वाली बात हो गई. हाँ, नई से कुछ तो अच्छा है. हाँ, मगर even I did that telemedicine over a period of time only because the COVID did not permit me to examine the patient or have the patient, unless it was an emergency, then of course then we were seeing them in the ER. My only concern is the following. I think now that the COVID is behind us, we need to bring back the patients back to the office, and that's what I urge my doctors. I always say, look, having gone through that phase does not mean that the life is totally remotely now, is the only. I think we should still bring back the patients and have them examined, and this way they can actually learn more from the patient in person. अच्छा, और रोबोटिक्स के बारे में थोड़ा बताइए. कई लोगों को ठीक से पता नहीं है रोबोटिक्स का मेडिकल फील्ड में क्या रोल. The robotics have actually taken over also in medicine for the past almost 8 or 10 years. Now, एक साधारण एग्जाम्पल मैं देता हूँ. फ़र्ज़ कीजिए, मान लीजिए वेस्ट कोस्ट पे अगर कहीं सर्जरी हो रही हो और ईस्ट कोस्ट पे जो है फिजिशियंस हैं, यहाँ पर सर्जन्स जो हैं, वो एक्चुअली कंसोल पे यहाँ पर जो है, मैं तो सर्जन नहीं हूँ, मैं कंसोल पे अपने आप यहाँ पर ऑपरेट कर सकते हैं. The basic surgery is happening while the actual team is working there. But जो finer surgery है वो यहाँ से console से वो robotics वहाँ पे जो है चल रहा है, वो remotely चल रहा है. तो remotely one can do that. And same thing is true with eye surgery. Same thing is with a lot of renal stones, for instance, robotically. वो precision के point of view से ज़्यादा अच्छा रहता है क्या वो robotic? You actually, because आप computer की सहायता भी ले रहे हैं, और दूसरी चीज़ ये कि you're utilizing the expertise from any place in the world, any place in the world. So this is the greatest advantage. So instead of the surgeon migrating to another center, he or she can actually be, the whole entire team being stationed in one area, still be operating at that center, but also can operate elsewhere in many other centers simultaneously. एक जो सवाल है वो सिर्फ मेडिसिन तक रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, लेकिन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंटरफियरेंस है वो हर एक फील्ड में बढ़ रहा है. लाइक हमारे फील्ड में भी कई लोग आप देख रहे होंगे, अगर तो टेलीविजन चैनल पर जो प्रेजेंटर है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्रिएट की हुई है, कई बार ऐसा है. एंड ऑफ कोर्स स्क्रिप्ट राइटिंग वगैरह में. अब मेडिकल फील्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करती है, एक तो वो या क्या कर सकती है वो बताएं. एंड अलाउ मी टू जस्ट थिंक एज अ लेमैन, व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग योर स्टडी ऑफ मेडिसिन, you have assimilated, absorbed वो जो भी है कि भाई ये सिम्टम है तो ये है. तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये तो ह्यूमन माइंड से बहुत ज़्यादा फास्ट पेस पर काम कर देती है. तो क्या डॉक्टर्स के लिए भी कहीं कुछ खतरा है क्या, ये हमारा थोड़ा सा कुछ छीन कर ले जाएगी यार दोनों? नहीं, that's a very important actually concern, I should say. Will the basic question what you're asking me is will the artificial intelligence override the human intelligence? I don't think so. I think the human intelligence should still take, again, we are still learning on artificial intelligence, and it has been created by the humans anyway. But artificial intelligence, जहाँ तक मैं समझ सका हूँ, these are basically iterations of the same what is happening over and over again. तो क्या करता है कंप्यूटर? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मान लीजिए चेस्ट पेन, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, फलाना 4-6 सिम्टम्स आपके सामने आ गए. तो जहाँ उसके सामने आ गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहता है दिस पेशेंट हैज़ टू बी रूल्ड आउट फॉर कार्डियक कंडीशन, सीधा. ठीक है, वो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर दिया, क्योंकि उसके पास तो बार बार वही 5-6 सिम्टम्स आप लोड करेंगे तो वही का वही आएगा नतीजा, तो वो एल्गोरिदम उस पर चल पड़ेगी उसकी. तो दैट वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन एक्चुअली एक्सपीडाइट द थिंकिंग एंड करेक्टली अराइव ऑल्सो. But I don't think we should use it as an autopilot all the time. We should still be in the pilot seat and still keep an eye on the autopilot. And artificial intelligence has been going on for a long time. I gave you an example about the cockpit. For instance, the pilots are, they could take a nap for an hour. The 747 will still fly, and that has been well documented. But the fact is that still somebody has to keep an eye what's going on all the time. So human intelligence, I think, should always override the artificial intelligence. जो आपने keep an eye वाली बात कही, उसको लेके हम वहाँ चलते हैं. जो हमारा system, the way it functions. जी. Even though you don't keep an eye, but you are still breathing. Well, there is some automation. Yeah. Or when you eat, कैसे digestion हो रहा है हमको पता ही नहीं हो रहा है. हालांकि पता हो तो अच्छी बात है. But bringing it to the other side, आप
कितना भी ध्यान रख रहे हैं, पता चल रहा है कि हार्ट प्रॉब्लम्स कह दिए, कार्डियक अरेस्ट कह दिए, एंड सम पीपल हु आर हेल एंड हार्टी, पता सडनली ये हो गया और वो, सो ये क्यों हो रहा है? और कई यूथ्स में भी हो रहा है ऐसा लगता है। हाँ, so actually you have brought up a very passionate subject and a very passionate topic for me, and thank you for bringing that to my attention again. And I personally actually had a chance to bring my innovative idea and device, which I would like to show it to the audience as well. It's called SmaRT technology, which is our company, where my engineers and technologists have actually worked on it. And it is currently a US patent pending. However, within 6 months to a year, we should achieve that goal as well. So the milestones are being achieved. Basically, ये device जो है, जो आपने sudden cardiac death के बारे में बताया कि पता चला कि एक को अनायास वो इंसान चला गया, और यूथ्स में खास तौर से यंग एडल्ट्स में ये ऐसा हो रहा है अनायास। जैसे आपने डमार हैमलिन का सुना होगा, या फिर गए तो नहीं, लकीली वो बच गए क्योंकि वो वहीं पे निदान था। द ट्रीटमेंट वाज अवेलेबल इंस्टेंटेनियसली, एंड दैट वाज द ऑटोमेटेड इलेक्ट्रिकल क्या कहते हैं, कार्डियोवर्जन डिफिब्रिलेशन। सो AED was available immediately, and as a result the person was revived. Had that not been available, the outcome would have been totally adverse and fruitless, or whatever you may say. So I'd say it's very, and then उसके बाद जो है अभी हुआ ये ब्रॉनी जेम्स का, तो ये ऐसे तो खैर लाइमलाइट में कुछ न्यूज़ आइटम्स आए हैं जिसमें पता चला कि अनायास ऐसे हो सकता है। खास तौर से young adults who are going and participating in enduring sports, and people say, oh my God, what happened to him? He was a young man, 25 to 19-year-old. Now, just FYI, the information specifically for the audience and your listeners, your esteemed listeners, I think it's very important that we realize that 900 to 1,000 people per day in the United States alone are dying suddenly. वो बड़ी पैशनेट चीज़ है कार्डियोलॉजिस्ट के लिए। दिस इज कॉल्ड द लेकिन क्यों हो रहा है? हाँ, तो उसका जो है, उसके कई पजल्स के पीसेस हैं। तो उसमें से एक पीस ये है, इट्स कॉल्ड HRV, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी। अगर हार्ट रेट वेरिएबिलिटी आपकी और मेरी, हम लोगों को जो है ऊपर से कुदरत से मिली है, वो हार्ट रेट वेरिएबिलिटी हम लोगों को मिली है। और मैं वेरिएबिलिटी को ये कहता हूँ एडेप्टेबिलिटी को ये कहता हूँ हेल्थ फिटनेस। सो इट इज़ इक्वल टू द हेल्थ फिटनेस। द मोर वेरिएबल योर हार्ट रेट कैन बी अप एंड डाउन, you and I, we can actually react to a fright, a flight, and a freeze situation, if you will. Fright, flight, freeze जो situations होती हैं, and हर एक को होती हैं। कभी स्ट्रेस रहता है ट्रैफिक का, कभी स्ट्रेस रहता है भाग दौड़ करने का, कभी स्ट्रेस रहता है ऑपरेट करने का, कभी टाइम से पाबंदी होने की उसकी स्ट्रेस रहती है। तो स्ट्रेस कहाँ नहीं है? तो मेंटल कंडीशंस and the anxiety, all of that actually is all being controlled. इसमें क्या है कि हाल ही में हमने यहाँ पर भी एक कार्यक्रम किया था, के एक सिंगर थे, वो भी स्टेज पे परफॉर्म कर रहे थे, एंड probably on stage itself he collapsed, ऐसा हुआ। और भी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अब ये जो आपका डिवाइस आपने डेवलप किया है, तो जो एक्शन मोड में है उसको तो पता भी नहीं है कि मेरे साथ क्या होने वाला है, तो ये कहाँ काम आता है? So this will be a piece in the puzzle that will help the cardiologist or the internist to ascertain whether the patient has an HRV, which is either normal range or an abnormal range. So it is additional knowledge for the physician to realize. Not that this is something which is totally new, the HRV component. However, the device is very uniquely programmed by my own technological and engineering पहले से पता लग जाए उनको कि इनका हार्ट रेट वेरिएबिलिटी की पॉइंट ऑफ व्यू से एडेप्टेबिलिटी कैसी है। करेक्ट। तो वो पता लगने के बाद क्या करेंगे? अच्छा, वो पता लगने के बाद जो है फिजिशियंस जो हैं उस वक्त जो है वो देखेंगे कि इनकी एडेप्टेबिलिटी नहीं है, तो उसके बाद आगे के टेस्ट यूज़ कर सकते हैं, और स्पेसिफिक टेस्ट यूज़ करेंगे, जैसे एको है, स्ट्रेस टेस्ट है, या कार्डियक कैथ्स करना है, या थरो हिस्ट्री इन फिजिकल। खास तौर से क्या होता है कि आजकल जैसे हार्ट अटैक के बाद जो है HRV बड़ा लो हो जाता है। तो एक पॉइंट ये है कि HRV अगर बहुत हार्ट रेट वेरिएबिलिटी अगर लो है, दैट मीन्स even in diabetics, in hypertensives, these are high-risk individuals, and they would require an HRV. Now, my device, which is uniquely programmed actually and written for a protocol, is not available, as a matter of fact, in a similar fashion elsewhere. HRV आपको जो है वॉचेस पे मिल जाएंगी, दूसरे फिटबिट्स ये जो हैं आपको जो है दूसरे अलग अलग जो यंत्र हैं उसमें मिल जाएगा, but nothing like where actually you do it in a single setting, and then in the same phase of your entire day-to-day activity, like you're resting, you may be at lunch perhaps, you can just do it at the same time, and automatically all that data will be transmitted to the physician,
who can actually make an interpretation, because ultimately the idea is not to just collect the data and look at it, because the general masses will not be able to, you know, make any note of it. It's the physician ultimately who's going to make a note of that HRV. So my SmaRT device is actually proposing that to the American College of Cardiology and American Heart Association. तो बेसिकली क्या होगा कि हम लोग इस युग में आ गए यहाँ के स्मार्टफोन से काम कर रहे हैं, अब ये स्मार्ट हार्ट की बात कर रहे हैं, और ये स्मार्टली इन्होंने एक किताब जो अंग्रेजी में लिखी वो हिंदी में भी उन्होंने अवेलेबल करा दी है। तो मैं आपको बधाई देने के साथ साथ चलते चलते बहुत ब्रीफली आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो अल्टरनेटिव मेडिसिन है उसको कितना इम्पोर्टेंट आप मानते हैं इन प्रिवेंटिंग दीज extreme situations? I relish that fact that you brought that up, because that's also a chapter within my book where I've talked about like Ayurvedic medicine, yoga medicine, herbal medicine. All these medicines are 5,000 years old, and we have it in our Vedas. And now it's being re-explored. That human element is coming back, and people are starting to see. There are studies that are happening in UCLA, there are studies that are happening in NIH, Bethesda, and as a result that they are starting to work on सिंपल थिंग लाइक हल्दी, टर्मरिक पे स्टडीज़ हो रही हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चा किए जा रहे हैं, बता रहे हैं कि टर्मरिक जो है आपके लिए बहुत अच्छा है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी कैंसर है, वगैरह वगैरह। हम लोग जो है हल्दी में, हमारी जो है नानी जी, हमारी परनानी जी जो है दूध में हल्दी मिला के शुरू से बचपन से दे रही थी। तो आज जो है जो भी तंदुरुस्त आप देख रहे हैं वो शायद वहीं से चली नानी जी की बात से मुझे याद, कई बार नानी जी कहते हैं बेटा आजा दूध पी ले, तो जब बेटे को बुला रहे हैं इसका मतलब है कि टाइम समाप्त हो रहा है, तो अब ये कार्यक्रम समाप्त करना पड़ेगा। तो मानव तत्व की जो खोज है वो कभी दूध तक ले जाएगी, कभी हल्दी तक ले जाएगी, और कभी शुद्ध हवा तक भी लेकर जाएगी। और सबसे बढ़िया और महत्वपूर्ण बात जो मनुष्य होने के साथ जुड़ी है, जो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी महत्व रखती है, वो है आत्मीयता की। आपके बहुत सारे तनाव का कारण ये होता है कि आप इतनी प्रेम से बात नहीं कर पाते हैं, जैसे कि आपने शरद चंद्र जी से अभी बातें करी हैं। तो आपका बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद, मंगल कामनाएं हैं। आपने जो इतना मौका दिया है, इतना मैं अपने आप को सुलभ समझता हूं। अपने आप मैं और आप दोनों ये भी मैं चाहूँगा कि अपने दर्शकों को पहुँचाऊँ कि ये पुस्तक जो है इसके साथ इन्होंने लिखा है एक दूसरे से जुड़ें, और उसके नीचे ना डॉक्टर शरद चंद्र जेटली के साथ डॉक्टर देवमणि जेटली का नाम भी लिखा हुआ है, जो दोनों जुड़े हुए ही हैं वैसे, लेकिन नीचे लिख दिया एक दूसरे से जुड़े, बट आल्सो को ऑथर है। आई जस्ट वांटेड टू मेंशन दैट। थैंक यू वेरी मच, थैंकिंग डॉक्टर शरद चंद्र जी, एंड थैंकिंग ऑल ऑफ यू। इट्स बीन एन ऑनर एंड इट्स बीन अ प्लेजर। नमस्ते, थैंक यू सो मच। नमस्ते।